Hi friends, this is today is a wonderful day, Saturday, and here we are on Instagram Live. And since morning, the amount of requests, the questions, जिस तरह के सवाल आप लोगों ने भेजे हैं, I am looking forward to this session because I am with a young officer of mine, Vivek Jacob. Special Forces, Para Commandos, 9 Para, and then of course 11 Para SF. One of the finest officers, a role model in fact. तो we will speak to him, बातें करेंगे खुल के. और आपके बहुत से questions आए हैं मेरे पास. Some of them I will ask, कुछ मैं अपने सवाल पूछूंगा. And soon he'll be here. Let's get him in. And in no time we will have Major Vivek Jacob, served in the army for 14 years. 14 साल उन्होंने नौकरी करी, फिर छोड़ दी फौज, and now he's into something different. He has established this claw, conquer land, air and water, Operation Blue Freedom, आपने पढ़ा होगा. Now they're attempting a world record, trying to climb with the handicapped people. Glacier के लिए इनका plan है अगस्त में, 15 अगस्त के आसपास. In that I'm also, associated with them, trying to, see in what way we can make this a very, very successful expedition. The one they are launching in the. We have Vivek Jacob, Major Vivek Jacob, is a legendary officer of Indian Army. Hi, Vivek. Hi, sir. Good to see you, sir. Good to see you. Same here, sir. Same here. So, I was just telling these young people who follow you and me, कि Vivek Jacob is an ex-NDA officer, joined the IMA, served for 14 years, was mostly involved in operations, initially with 9 Para SF, and then when 11 Para SF was raised, you were picked up. Generally, best officers are picked up to raise new units. ऐसे ही होता है ना? यंग ऑफिसर्स के पास चॉइस है, कोई यूनिट नहीं छोड़ना चाहता है ना, यूनिट कोई नहीं छोड़ना चाहता है, बट यू आर पिक्ड अप एंड यू आर इन द इनिशियल टीम जिसने 11 पैरा एसएफ को रेज किया था. सो वेलकम टू दिस लाइव सेशन. Thank you, sir. There's a story behind this. When we joined 11 Para SF, ना sir, तो लोग कहते थे ये जो सबसे बदमाश खुर्राट जो है ना, सबको हैंड पिक किया हुआ है सर. So you're hand picked. So like that. मुझे पता है, जब भी नई यूनिट्स रेज होती है रेजिमेंट की, तो जब नाम आते हैं, बिकॉज नाम की सिलेक्शन इस तरीके से होती है कि कुछ मिडिल लेवल के होते हैं, कुछ अच्छे ऑफिसर होते हैं. कि नया सीओ he puts his foot down, भाई मुझे तो ये बंदे चाहिए, नहीं तो I will not become the CEO or something like that. At least हमारे गार्ड्स में ऐसे ही होता है. तो फिर लोग ना हाथ पैर मारते हैं, क्योंकि नई यूनिट में एस्टैब्लिश करना, स्पेशली आप मेजर हो गए हो तो यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ ना, आपका एक फिर कहो यार अभी कहाँ एक नई यूनिट में नई इनिंग स्टार्ट करें. सो जनरली गुड गाइज गो. सो नो वंडर यू आर टेकन, बिकॉज कि यार ये ऑपरेशनली फिट है बंदा, ये यूनिट रेस करने में मदद कर देगा. ऑपरेशन तो आता था सर, बाकी कुछ पता नहीं है. स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स को तो ऑपरेशन चाहिए. दे आर नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन. कोई आपको मेस सेक्रेटरी बनाने के लिए थोड़ी लिया था. सर actually when we got together, when the unit was when we were being raised, so I was मैं सर जब भी मेरे को सबसे दूर होना था तो I used to go to the brigade mess, sir. Brigade mess में to have a drink. So brigade mess में कोई नहीं आता था सर, है ना सर. So everybody used to be here there, but brigade mess के बार में nobody used to go. So whenever I wanted to have a drink on my own, so I used to go there, sir. So when the unit was being raised, so I went into the bar, sir. मैं सोचा कोई नहीं होगा, and I walked inside and I saw one officer sitting there, sir, already. तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, तो वो बार के एक कोने में था सर, मैंने जाके दूसरा कोना पकड़ लिया. So that like we didn't want to talk to each other.
So, like I was having an old monk and then I noticed he was also having an old monk and then चुपचाप सर आधे घंटे कोई बात नहीं हुई and then थोड़े आधे घंटे बाद एक और ऑफिसर आया सर, उसने हम दोनों को देखा, हम दोनों ने उसको देखा and he picked the exact center. तो हम तीन लोग another half an hour not talking to each other, चुपचाप अपना having a drink. And then a fourth officer came in and he recognized all three of us कि यार तुम तो सारे 11 पैरा वाले हो, एक साथ बैठे हुए हो. That's how we met, sir. Okay, great. अच्छा, तब तक जानते नहीं थे एक दूसरे को? नहीं sir, nice. We were all actually, sir, from SF units में क्या होता है sir कि अपने ही officers, अपने unit के officers नहीं मिलते हैं कई साल तक, like 2 years, 3 years, नए officers आ जाते हैं unit में and we don't get to meet, sir. तो दूसरे एक टीम साउथ कश्मीर में, एक नॉर्थ कश्मीर में, एक सुरनकोट में है, एक कहीं एडम बेस कहीं और है. Sir, deployed all over, sir. So yeah, that way, sir. Yes. Great. I thought we'll start with कि तुम जब IM में पहुंचे, तुमने ये डिसीजन क्यों लिया कि भाई मैंने पैरा SF ज्वाइन करनी है? And what was your other arm given to you? Just tell me that. Sir, to join actually जब मैं NDA में था सर, तो एक अटैक और डिफेंस का एक्सरसाइज होता है 6 टर्म सर. तो मैं हमारी पार्टी जो थी वो अटैकिंग पार्टी में थी एंड हम लोग को एक हिल फीचर कैप्चर करना था और हमने एक माइंड फील्ड के थ्रू जाना था. उसमें पिल बॉक्सेस थे, मशीन गन फायर वगैरह सर. सो our directing staff was taking us through the minefield and हमको platoon rods में खड़ा कर दिया and चल रहे थे. बोला अच्छा माइन फट गया है, एक मर गया है, इसको उठाओ. फिर थोड़ा और दूर गए, एक और मर गया है. You are going in that classic fashion of making an FUP and then yes sir. तो मैं सोच रहा था सर कि इससे अच्छा तो अगर पैराशूट होता तो हम ऊपर से आते हैं ना सर गोली मारते हुए, तो it's better to join like that. So anyway, I think I mentioned before also, तो मेरे को ये लगा sir, if I have to go into combat and I want to go into, if that is what it is, then to go in with everything, sir. Go in with the best, the best weapons, best equipment, best training, best buddies, है ना sir, कि मतलब point of force and get the best missions. So ऐसे करके मैंने सोचा था sir. And we had fantastic हमारे जो NDA में divos वगैरह थे sir, battalion commanders divos, and in IMA also I saw a lot of these अपने 2-3 para officers I interacted sir, and I was very very inspired by them कि बनना है तो ये बनना है ना sir, करना है तो ये करना है. So it was like mind was like that only sir. So naturally it just went there only sir. So like that. I know ये बहुत हर एक के मन में एक दो बार तो ये चलता है कि यार वो जंप्स कर ले एकेडमी में, वो मौका मिलता है. या फिर पैरा SF के जो DSS थे हमारे कैप्टन्स और मेजर्स, दे आर डिफरेंट, है ना. दे आर जनरली कूल, दे डोंट टिक ऑफ फॉर माइनर थिंग्स बिकॉज वो देख चुके होते हैं ना ऑपरेशन वगैरह. So and lot of learning value and also तो that is why so when I choice of arms came, तो मैंने भरा था सर पैरा SF सिखलाई सर. Okay. Why सिखलाई? I don't know sir, I had an affinity towards Khalsas in the sense I felt they are मतलब सर खुश रहते हैं ना सर, काम करते हैं, सोल्जर्स हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, something like that. I had a kind of an affinity कि अच्छा कमांडो नहीं बने तो है ना खालसों के साथ है ना काम करेंगे. तो ये था सर. when I was getting commissioned, my father was in guard, grandfather I told you. तो मैंने तो I have loved to join guard because father तो सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन थे, जो was a huge thing. तो मैंने वो तो भरा ऊपर guards, brigade of the guards as parental claim, but नीचे I wanted to join Assam regiment because Captain Negi was there who retired as army commander ना. Oh, he was what a fitness freak. उसको देख के ना लगता था यार, तो सबने कहा यार असम रेजिमेंट क्यों? मैंने कहा यार because of Captain Negi. Roger sir.
and actually I come from a military background also, sir. तो क्या बोलते हैं, my grandfather was in Kumaon regiment, and then my father was a para commando himself, sir. He was from 9 only, and but that was actually the reason why I didn't want to join 9 because my dad was from that, and बचपन से ही मैं बाहर ही रहा हूँ. I was in boarding school and all, तो मेरे को ज्यादा एक्चुअली कुछ पता नहीं था सर कि पैरा कमांडोज करते क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड तो आई डिडंट हैव एनी आइडिया. माय फादर नेवर यूज्ड टू टेल अस एनीथिंग, एंड माय फादर वाज मोस्टली आउट इन फील्ड एरिया ओनली, सर. तो ये था. एंड देन क्या कहते हैं, आई वांटेड टू मेक अ लाइफ ऑफ माय ओन, एक्चुअली टू क्रिएट माय ओन पाथ, क्रिएट माय ओन, लिव by what is my capability, not what my father was. Live by your terms and conditions. हाँ जी सर. एंड है ना सर, शॉर्ट लाइफ है ना, शॉर्ट लाइफ एंड माई लाइफ है ना सर. तो लाइक दैट सर, ये था. सो आई एक्चुअली वांटेड टू जॉइन वन पैरा एसएफ, बट जिस तरीके से मेरिट बैठ रही थी, एंड आई वुड हैव probably got it also. I don't know if I would have cleared probation there, but क्या कहते हैं, कुछ बीच में सर एक बंदा कहीं और बीच में से वो आ गया, एंड देन वी ऑल काइंड ऑफ यू नो एक नीचे गए, एंड देयरफॉर आई वेंट टू 9 सर, इनवेरिएबली. तो बट व्हाट आई लर्नड देयर सर, इट वाज जस्ट यू नो सर, फैंटास्टिक सर. अच्छा, lot of people have asked me this question कि मेजर विवेक जैकब से ये जरूर पूछना प्रोबेशन पीरियड के बारे में. So some memory or just to tell them how hard or how soft it is, या क्या experience है, just tell our friends about your probation period, you know, what you remember of it now. Probation sir, वो कोई कभी भूलता नहीं है सर. वो तो वो वक्त ही ऐसा होता है. And actually probation used to be for 3 months before I joined, and when I joined, तो sir somebody somewhere in army headquarters said कि SAS does probation for 6 months, तो हमें भी 6 महीने के लिए करना चाहिए. And हाँ सर, 9 पैरा ने तो सीधा वही उठा लिया बोला. Okay. हाँ जी सर. So it started off, मैं आते ही एक्चुअली सर मेरा वो शुरू हो गया था. I landed up, I don't know if people who are watching, they know Harshan Ramachandran, Ashok Chakra 2 para sir, Captain Harshan Ramachandran. We were buddies sir, NDA, IMA, YOS वगैरह हमने बहुत कुछ साथ किया था सर. And so Harshan 2 para SF was also co-located that okay. तो we joined together, and हम पहुंचे सर. मैं I walked into 9 para SF adjutant's office. तो adjutant थे सर उस टाइम पे. तो he was a senior major, and he came up and he said कि अच्छा okay, why have you joined, why did you volunteer for 9? So I told him sir, actually I didn't volunteer for 9 and I wanted to go to 1. तो मेरा वहीं से रगड़ा शुरू हो गया था सर. So you made a blunder, you know. तो वहां से शुरू हो गया सर. एंड देन probation lasted for 6 months. I had a very fantastic probation sir, actually, which I look back and I feel like that at that time तो nobody likes it. तो for 2.5 months I was the only officer actually doing probation, and करीब थे सर करीब 109 110 टोटल, काफी बंदे बहुत थे सर. So probation started off, and sir वो फिर दिन रात क्या होता है, हफ्ता दिन रात, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे महीने, ये सब खत्म हो जाता है सर. And it is just moment to moment, and you have to just, they are constantly testing, constantly being given tasks which seem impossible, है ना सर. तो बस इट्स लाइक एन ऑब्स्टिकल कोर्स है, मेंटल ऑब्स्टिकल कोर्स है, दिल का ऑब्स्टिकल कोर्स है, फिर बॉडी का ऑब्स्टिकल कोर्स है. तो करते रहते हैं. एंड और जवान भी होते हैं आपके साथ प्रोबेशन कोर्स में? हाँ जी सर, सब एक साथ होते हैं काफी जो वॉलंटियर होके आए होते हैं. यस सर, ऑफिसर्स एंड जवान साथ में प्रोबेशन करते हैं और कोई फर्क नहीं होता. अब
अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग वो होता है ट्रेडिशन. सो इन 9 हम लोग रैंक्स पहन के प्रोबेशन करते हैं, बट काम वही होता है सर. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिसर और अ जवान का प्रोबेशन. सेम रगड़ा. इनफैक्ट ऑफिसर का रगड़ा तो काफी एक्स्ट्रा चलता है सर. बहुत ज्यादा होता है. मतलब मुझे भी अपने हाँ चलो अब फिर क्या हुआ. तो यू लिव इन द बैरक्स, उस टाइम पे जवानों के साथ रहते हो लाइन में? 6 महीने जवानों के साथ लाइन में रहते हैं एंड साथ खाते हैं, साथ रगड़ा खाते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ पानी पीते हैं, साथ ट्रेनिंग करते हैं, साथ सब कुछ साथ ही होता है सर. एंड रात को थोड़ा सा अलग हो जाता है. रात को ऑफिसर्स को ऑफिसर मेस बुलाते हैं सर, फिर वहां शुरू होता है सर. सो इट्स अ साइकिल, डे नाइट डे नाइट. मैं उसी पे आ रहा था. आई जॉइंड फर्स्ट गार्ड्स इन मेरठ एंड मैं बोल रहा था तब जब मेरा काइंड ऑफ प्रोबेशन हुआ यूनिट में, वो फर्स्ट 3-4 मंथ्स, मुझे लगा कि यार अगर मुझे AK-47 मिल जाए तो मैं 2-4 सीनियर्स को तो ना यहीं खत्म कर दूंगा. वन डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो यार. एंड सिर्फ एक साइकिल होती थी एंड हमारा मेस से ना दैट लाइन वाज, एंड आई यूज्ड टू एनवी द जवान्स कि यार इससे अच्छा लाइन में ही डाल दो कि मेस तो मत बुलाओ कम से कम. देन यू वेयर फॉर द मेस एंड मेस लर्निंग द रेजिमेंटल हिस्ट्री और मेस सिल्वर एंड सम ट्रेडिशन. सम स्टूपिड बंदा कोई 200 साल पहले कर गया, उसको याद करना, उसकी बातें करना, और फिर नाइट ड्यूटी चेक करना, फिर सुबह एंड आई कैन इमेजिन व्हाट इट वुड हैव बीन फॉर यू नो. ठीक है सर, इट गेट्स इंटरेस्टिंग आफ्टर सम टाइम है ना सर. एंड यू गेट यूज्ड टू. एक्चुअली क्या होता है ना सर, जितना भी हो जो भी हो है ना सर, द माइंड इज अ फैंटास्टिक थिंग एंड सो इज द बॉडी. यू विल एडजस्ट टू इट है ना सर. आप है ना शुरू में और यू मेक ग्रेट फ्रेंड्स यार. बहुत स्पेशली जवान जो कईयों से ना ऐसी दोस्ती हो जाती है, मतलब एंड दे ग्रो विद यू. इट इज मेरे केस में मुझे याद है हवलदार टू नायबदार केडर में मेरे को डाल दिया सिपाही की, मतलब कि पूरा केडर सब कुछ करना उनके साथ, स्कॉट पोस्ट से लेके ड्रिल ये. तो जब मैं सीओ बना, वो सुबेदार मेजर बन रहे थे, तो उनके ना वो मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था. एंड एक बड़ा रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए ना हो जाता है ना. सर एब्सोल्युटली सर. ऐसे काफी जिंदगी भर के रिश्ते बन जाते हैं सर, है ना. इट इज लाइक ए होम अवे फ्रॉम होम ना सर. एक्चुअली जैसे मैंने काफी लिटिल लेटर ऑन इन सर्विस आई रियलाइज, मैं अपनी टीम से बात कर रहा था और मैंने बोला यार कि इतने सालों से है ना 9 महीने 10 महीने तो हम लोग साथ में होते हैं है ना सर. एंड एक्चुअली फैमिली और बच्चे के साथ तो हम है ना महीना 1.5 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा काटते हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years है ना सर, क्या बोलते हैं 15-20 साल 25 साल जितना भी आप सर्व करते हो, तो एक तरीके से आपकी प्राइम ऑफ योर लाइफ हैज बीन स्पेंट विद ईच अदर ओनली, नॉट विद योर मदर फादर और योर वाइफ और योर चिल्ड्रन. दिस इज व्हाट इज योर फैमिली. एंड क्या बोलते हैं, तो वो रिश्ते ऐसे बन जाते हैं सर. एंड कई लोग ऐसे हैं सर जिनके साथ मैंने प्रोबेशन किया था और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को मदद कर करके यू नो वी यूज्ड टू मूव अहेड. एंड उन्हीं के साथ लड़ाई में भी गए सर. एंड इन कॉम्बैट फंसे भी सर एक साथ. और वहां भी सर इन कॉम्बैट आल्सो यू नो इन लॉट ऑफ फायर फाइट्स एंड ऑल वी हैव स्टूड बाय ईच अदर एंड फॉट अगेंस्ट एन एनिमी है ना सर. तो अभी भी गया था सर. आई हैड गॉन टू द यूनिट एंड कई बंदे मिले सर. तो इनफैक्ट वन ऑफ द गाइज आई हैड डन प्रोबेशन विद, तो he had come from गोरखा यूनिट्स. तो वो उसने तो बहुत रगड़ा खाया था सर प्रोबेशन में, एंड बिकॉज he had come with 5 years of service. तो उसका रगड़ा तो एक्स्ट्रा चला था बिकॉज अगर वो सिलेक्ट हो जाएगा तो है ना फिर he will go higher in ranks and things like that. तो उसका बहुत ज्यादा रगड़ा चला था. And he stood everything, he faced everything है ना सर. And in combat also हम दोनों एक बार फंस गए थे सर कहीं पे, तो हाइडआउट के आसपास. एंड उसमें भी we stood, हम दोनों ही थे सर. एंड फिर हम लोग जैसे भी निकल गए वहां से एक साथ, हमने we had contact together. And then many years later sir I was actually posted in airborne school. And मैं बाइक पे कहीं जा रहा था और मैंने देखा बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी है. एंड देन आई वेंट जस्ट स्टॉप माय बाइक एंड वेंट टू सी इनसाइड कि क्या चल रहा है. तो काफी जवानों का भीड़ बना हुआ था, तो अंदर घुसा तो देखा यही बंदा सर
आगरा में, मतलब लास्ट वी हैड मेट इन ऑपरेशंस इन JNK, एंड नेक्स्ट टाइम आई सी हिम आफ्टर व्हाट 2 years और समथिंग, ही वाज लाइंग ऑन अ बेड सर। वो पूरी भीड़ उसके बाद जमा हो रखी थी, उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। तो हाँ, ही वाज लाइंग ऑन द बेड एंड मैंने ऐसे ही देखा तो उसके कान से ब्लीडिंग हो रही थी। सो आई रियलाइज इज ब्रेन हैमरेज। तो उसको सीधा वहां से उठा के सीधा आई जस्ट टुक हिम टू ICU इन हॉस्पिटल। तो ही वाज इन कोमा फॉर 3 days एंड ही केम आउट ऑफ इट। एंड अभी हमारे नाइनतारा के मंदिर में ही काम करता है सर वो। ही इज स्टिल वेरी वेरी फिट। वैसे तो मेडिकल कैटेगरी है बट हर चीज सर, स्पीड मार्चेस एंड सब कुछ करता है सर वो। सो यू नो दैट काइंड ऑफ हार्ट these people have sir, it's fantastic। ये ब्लड रिलेशंस ना, और स्पेशली ऑपरेशंस में पीस की दोस्ती अलग होती है ना, वो रेलवे स्टेशन तक की होती है। लेकिन जो ऑपरेशंस में दोस्ती होती है, जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 दिन धक्के खाते हैं पहाड़ों में और बर्फ में चलते हैं, और जो है ना, और इतना पसीना बहाते हैं, इतने एक दूसरे को, वो हमें देख रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं, एक टिफिन से खाना खाते हैं, एक स्लीपिंग बैग में सोते हैं। वो जो दोस्ती है, वो यारी ना, वो मतलब मेरे अभी भी जो सबसे क्लोज दोस्त है वो हैं जो मेरे साथ RR में थे। मतलब so इससे बढ़िया भाईचारा और कॉमराडरी या ब्रदरहुड हो नहीं सकता। What you know, support each other in operations, in firefight, and you've seen so much of it, है ना? My fair share sir। My fair share। Yeah, your fair share, more than your fair share, या maybe उसमें भी चांस है ना। मैंने देखा तुम तो फील्ड में लगे रहे, I didn't see you go ऐसे कहीं इंस्ट्रक्टर चले गए G3 वगैरह बीच में 2-3 साल कहीं मस्ती करने के लिए, कहीं ये वो। नहीं सर, आई डिड गो ऑन 2 postings बट क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है सर कि मैं परमानेंट ही कॉम्बैट में रहा। First time I was actually sent out of combat. I was sent out of combat on a peace posting because actually मेरा बहुत लंबा खिंच गया था, and constantly in combat over years and years it has an impact because you are constantly focused on one thing, you are hunting दिन रात सर, और कुछ नहीं चलता दिमाग में, and क्या कहते हैं, सपने भी वही आते हैं सर। तो अरे एक्चुअली में सपने वो आते हैं और बहुत दिन तक आते हैं वो सपने। हाँ जी है ना। और नहीं तो आपने सही बात कही है, सपने ना ये सोने नहीं देते आपको। और जो खास तौर पे जिसका नाम सुना होता है ना, कोई बहुत बड़ा वी आर चेजिंग सम मिलिटेंट, सम जिसका बहुत नाम है, वो सपने में आता है यार। उसको मतलब यू डिजायर सो मच कि यार हमारी टीम क्या लग जाए तो कितना मजा आएगा, यू नो। आई नो इट अफेक्ट्स यू। इनफैक्ट मैं आपको इतना अफेक्ट होता है, मैं RR से ना फ्रॉम अनंतनाग आई वेंट स्ट्रेट टू ढाका एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल टू डू माई सेकेंड स्टाफ कोर्स। तो वहां मुझे ना 4-5 महीने लगे। वो यार मैं कॉलेज में आ गया हूँ, इंटरनेशनल ऑफिसर हूँ, मेरे साथ पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, अमेरिकन है, सब कुछ है। और मैं सबसे पहले सुबह उठ के ना ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ता था यार, मेरे एरिया में साउथ कश्मीर में क्या हुआ है और मेरी यूनिट ने कहाँ पे। तो आई यूज्ड टू नो बिफोर एनीवन एल्स, मैं पूरी खबर रखता था। सर मेरा तो क्या बोलते हैं सर, देयर यूज्ड टू बी, मेरा एक कमरा था सर, एक एक्चुअली बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के रिज लाइन के ऊपर एक ही कमरा था सर, और वो मेरा कमरा था, एंड बाकी सब लोग नीचे रहते थे। तो आई यूज्ड टू लिव अलोन देयर, एंड क्या कहते हैं, वहीं प्लानिंग करता था और वहीं से ही नीचे जाके ब्रीफिंग करके वहीं से ही आउट होता था। तो आई वाज देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड वहाँ उसपे एक ही बेड था सर, 1 single बेड। तो एक बेड था, एक कंप्यूटर था, एक मैप था और मेरा हथियार था सर। तो सो क्या कहते हैं, मेरे जो उस टाइम पे 2IC होते थे सर, वेरी वेरी फैंटास्टिक मैन। तो he used to, whenever he used to visit our area, तो second hand command थे, तो he could have gone and stayed in very comfortable place, but वो आके मेरे कमरे में ही सोते थे सर। तो since he was senior, तो बेड पे वो सोते थे, मैं जमीन पे बेड स्लीपिंग बैग लगा के नीचे सो जाता था। तो ऐसे करके वो 2
2-3 बार सर ही विजिटेड मी ओवर ए फ्यू मंथ्स एंड क्या कहते हैं थर्ड टाइम व्हेन ही वाज स्टेइंग एट माय रूम, तो मैं सर सुबह उठा तो सर तो सुबह उठ जाते थे, तो मैं उठा तो मैंने देखा सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला, तो जैसी मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला था कि बोला यार जेकब तेरा टाइम हो गया यार, अभी टाइम टू गो। तो आई अंडरस्टूड व्हाट ही इज सेइंग, बट क्या कहते हैं I pretended as if, because it was a shock to me also, because, full flow for last couple of years. So he said, यार तेरा टाइम हो गया है। तो मैंने सर what do you mean and all? बोलता है यार रात भर तू 3 बार हो गए, रात भर तू है ना मार दो, भाग लो, पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऑपरेशन चल रहा होता है तेरे सपनों में। So it's time to, take a break. तो because है ना सर सीनियर है, उन लोग ने बहुत देखा है, तो they know कि when to है ना सर, हाँ, there's a time to take a break. So that's how I went on my first posting, sir. तो ये है। तो ये तुम्हारे साथ भी हुआ है कि जब हम बहुत दिनों बाद ऑपरेशनल एरिया से, स्पेशली जिस टाइप का आपने काम किया, जब आते हैं सडनली किसी कार का टायर भी बस्ट होता था, आपको लगता है फायर खुल गया, कहीं ब्लास्ट हो गया? हाँ सर, ये तो एक्चुअली क्या होता है ना सर कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गोली और टायर फटने की आवाज में फर्क पता लग जाता है सर। सो you generally know, but yes, it definitely catches you. Any sound ना, एक sound it alerts you. क्या हुआ है ना? सर so it catches your attention sir। हाँ बिल्कुल, it catches your attention, क्योंकि ब्लास्ट का नहीं पता चलता ना, क्योंकि जब हम लोग थे तो आईडी ब्लास्ट भी बहुत होते थे सर। आईडी बहुत होता था सर, बहुत खतरनाक होती थी, और ना मतलब गोली से मरने का डर नहीं होता था। ये तो मन में रहता है फौजी के, यार कहीं गोली लगे, मतलब एक ना, आई थिंक वी ऑल थिंक अलाइक, इसीलिए हम फौज में हैं और कॉम्बैट देखा है कि लगता है कि यार कहीं ना कहीं गोली लगेगी, हम भी, हमारा भी वो होगा। बट आईडी से बहुत वो लगता है, बिकॉज ना दैट इट कांट गेट वर्स देन दैट। It is unpredictable, so वो है सर, you can't plan, really plan. Very gruesome also. Sir. अच्छा, तो we spoke of profession and this. अभी बहुत से बच्चे पूछना चाहते हैं कि how did you lead as a initially when you were first time taking your squad out and all that, young जब थे, तो what were those things which you learned जो as a leader you could exhibit, जो खास आपकी abilities थी first time when you went, they are also looking at you, JCOs और जवान, और कईयों ने काफी काम किया होता है ऑपरेशंस में। yes सर शुरू में तो है ना सर, आपको कुछ मानते ही नहीं है ना सर, तो आप लेफ्टिनेंट जो भी होंगे, आप ऑफिसर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, है ना सर, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन एसएफ बटालियन, and it doesn't make a difference by your ranks or this thing. It is your reputation and your ability in combat which actually decides. क्योंकि जब गोलियां चल रही होती हैं सर, तो सब है ना मौत मंडरा रहा होता है, तो उस टाइम पे कौन से रैंक और कौन सा क्या सर, then that time it is ability, है ना सर। like तो initially सर I remember कि क्या बोलते, मैं भी चुप ही रहता था सर, जो चल रहा है वो देखता था, सीखता था एक्चुअली। तो आई रिमेम्बर वन सर, जब मेरे को पहली बार मेरे को इंडिपेंडेंट कमांड मिला एक ट्रूप का कि ठीक है जगह आज तू ले जा करके। सो मेरे को हो गया था, तो थोड़ा बहुत टाइम हो गया था मुझे, एंड आई हैड सीन कांटेक्ट इन माय फर्स्ट ऑपरेशन ओनली। तो मतलब मेरे साथ कांटेक्ट बहुत हुआ सर। I was very lucky and yes sir, मतलब it just happened like that sir। तो मैं रिपोर्ट ले रहा था सर रात को, एंड क्या बोलते हैं, हमारा ट्रूप खड़ा था और जेसी साहब वाज गिविंग मी द रिपोर्ट। तो पीछे सर एक बंदा बात कर रहा था, है ना सर, क्या बोलते हैं, कुछ तो बात कर रहा था, हंस रहे थे पीछे। तो we were just about to launch and तो हमसे वहां से लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर दुकानें थे सर, मार्केट थी।
तो और वहां से लेकर मार्केट के बीच में पूरा जंगल वाला एरिया था सर, रोड था, वहां आरआर भी लगी थी और आतंकवादी भी ऊपर नीचे करते रहते थे उस टाइम पे ना सर, बहुत थे। तो क्या कहते हैं, तो आई जस्ट टोल्ड देम कि ठीक है, आप लोग यहीं खड़े रहो, मैं जा रहा हूँ, आई विल वॉक दिस इंटायर टिल दैट मार्केट एंड आई विल touch the last door of the shop in the market and I'll come back. उसके बाद एक एक करके आप लोग जाओगे। तो क्या कहते हैं सर, कमांड लेनी पड़ती है, कोई देता नहीं है ना सर। nobody gives you command, especially in combat. nobody is ever going to give you anything. It is you have to take it, है ना सर। you have to take it and you can take it if you feel you can take it, है ना सर। मतलब if you take a step, डर सबको लगता है ना सर, पर जो करना होता है वो तो करना ही है। And it was just a simple thing. अगर अकेले चल रहे हो तो फिर भी ठीक है, but in combat what happens, like what I used to feel is कि in case you don't, in case you don't have command of your troops in combat, in case you don't have, if you don't hold their heart in your hand, and you are, if they don't hold, you know, you in respect, and if then what will happen, it will translate into combat. जब आप लड़ाई कर रहे होगे, अगर अभी यहाँ पे खड़े होके इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, या इज्जत नहीं दे पाने का सिंपल ये मतलब है कि आप पे भरोसा नहीं है शायद, और something like that, you know, there is a doubt. So अगर डाउट है और ये डाउट लेके आप ऑपरेशन में चले गए, है ना सर, तो देन व्हाट विल हैपन इज व्हेन द फायर फाइट इज ऑन, एंड जब, है ना, मौत मंडरा रही होगी एंड गोलियां इधर उधर फ्लाई कर रही होगी और आवाज बहुत आवाज चल रही होगी, उस टाइम पे कोई नहीं सुनेगा आपकी। At that time you will not be able to control the chaos. So it is better either, you know, that you take command or, you know, get out of the way वाला कहानी है सर। So in SF battalions and all, और जो भी हो सर, जहाँ भी as an officer, as a leader, and at whatever rung of leadership that you are, you have to you know, take the bull by its horns, है ना sir। you cannot sidestep or wait for somebody else to give you your authority, है ना sir। So to do your job you require you have to take your chances, you know, in your case, see, whatever I did with my unit, First Guards, you know, you were the same company, अलग बात थी, they knew कि यार ये तो सबसे fit है, साथ तो ले जाएंगे ये वो। But my experience, exactly taking away from where you were saying, I went to RR at a service when I was about to command a unit. With 17 years service, I went to RR. I had done staff college. I was BM of an armored brigade. तो लोग एक reputation तो पता है फौज में कि है तो ना Yashmore is on a different path and all. So when I got this opportunity, I volunteered for this and I went to a unit जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था. It's a Garhwal RT mix unit. And I was the first guards officer to go to this unit. And South Kashmir में. तो मैंने सोचा यार अगर मैं यहाँ typical वो करूँगा ना, I was number 2 in the unit. तो 1-1.5 साल में मैंने CO बन जाना था. तो वो होगा, बट मेरे मन में ना बहुत ये था कि यार नहीं, अभी दिस अ न्यू बैटलफील्ड, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो जब मैंने सीओ को बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, मेरी सर्विस और एज मत देखना, आई एम एट पीक ऑफ माई फिटनेस, प्लीज सेंड मी टू द प्लेस जहां पर मैक्सिमम टफ एरिया है एंड वेयर द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग, सेंड मी टू द वर्स्ट प्लेस। तो वो ना कहते यार ये मैंने पहली बार ऐसी बात कोई बंदा इतना क्वालिफाइड होके बोल रहा है। और मैंने कहा एक और चीज बता दूं सर, मैं यहाँ ना टाइम पास करने नहीं आया हूँ, या तो तिरंगे में जाऊंगा या अचीवमेंट करके जाऊंगा। तो ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए मेरे बहुत अजीज हैं, मैं नाम भी लूंगा उनका, विनोद रायजादा, बहुत ही बढ़िया। वो ना वो खड़े हो गए, कहते यार यश मेरे को जिंदगी में किसी ने ये बात नहीं कही आज तक, इतना लेवल आपका मोटिवेशन के लिए है। He said you will go with great glory from here, this I'm telling you. And he earmarked me to the where I operated with 2 para SF, you know, बिल्कुल लास्ट में पीर पंजाल और यू नो दक्षोम एंड वेरीनाग और कोकरनाग उस एरिया में हमको उन्होंने वहां भेज दिया। बट यूनिट वही ना, जवानों की अब बात आई, अब पहुंच गए इतने सब, वो भी थोड़ा सोचा इतना सीनियर कंपनी कमांडर आ गया, नहीं तो 4-5 साल सर्विस के 6 साल सर्विस वाले लोग थे यहाँ पे। तो मेरे को हफ्ता 10 दिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, बस घूमते रहे। तो उनको पता लग गया यार ये तो मतलब हर रोज काम करने 20 से 30 विवेक 20 से 30 किलोमीटर चलना यार,
हर रोज सर और पार्टी बदलती रहती थी, मैं कॉमन फैक्टर था। वो तो दे विल नॉट गो नेक्स्ट डे कि आज हमारा ऑफ डे है। तो हफ्ते 10 दिन में ना ऐसा रैपो बन गया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर वो समझ गए कि यार नाउ और फिर जब बातचीत की उनसे, स्क्वाड में हम लोग आपस में डिस्कस करके ऑपरेशन करते हैं। इट इज नॉट टिपिकल व्हाट पीपल थिंक कि हुक्म मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका फिर इतना मजा आने लग गया कि इट बिकेम वेरी वेरी पार्टिसिपेटिव। मतलब ग्रेट आइडियाज यूज्ड टू कम फ्रॉम दिस यंग सोल्जर्स कि नहीं साहब ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, तब वहां चलेंगे, आपको नहीं पता, वहां चलते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हो कि कमांड लेनी पड़ती है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है लीडरशिप में, यू हैव टू स्टे इन फ्रंट। Yes. ये It's हो a भी fine सकता है balance. So it's a fine balance between letting the people be and exploring their own potential and stepping in and making sure that when you can see something clearly people will follow, है ना सर? तो बड़ा वो है सर। तो ये तो हाँ सर, दिल दिमाग एंड बॉडी एक साल के बाद दिस कंपनी ऑफ माइन लोग बाहर से ट्रेनिंग के लिए भेजते थे कि यार वो यश मोर की कंपनी है ना, वहां हम अपनी ना टीम भेजना चाहते, थोड़ा हमारे बंदों को भी ट्रेनिंग दे दो। Roger sir. Yeah, we trained so many small teams of other units, other RR units at my location. And फिर सेक्टर में, फिर डिव में, कोर में हमको लोग बुलाते थे, यार प्लीज कम एंड गिव अस अ ब्रीफिंग कि बताओ कि सेलेक्टेड फ्यू, ऑफ कोर्स वी हैड ऑफिसर्स फ्रॉम एसएफ एंड हम भी उनमें होते थे कई बार टू गो एंड गिव प्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ द ऑपरेशंस, और बड़ा कैंडिडली बताना लोगों को कि हमने ऐसे किया, और सच बोलते थे हम लोग। तो ये सुन के भी लोगों को अच्छा लगता था। सच तो बहुत जरूरी है सर, उसके बिना तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बिकॉज एक दो बार चल जाएगा, बट यू एंड मी अंडरस्टैंड इट, कि यार इतने लोगों की नजरें आप पे रहती हैं, है ना? यू हैव टू बी ट्रू टू पीपल यू रिप्रेजेंट, Absolutely, sir, and not only being truthful or honest for the present, but also for future generations, sir. क्या होता है कि अगर जैसे किसी भी काम में गड़बड़ होता है सर, there are prime ministers and presidents, and rulers of nations who make mistakes, है ना सर? It's human to make mistake. तो है ना सर, तो इन कॉम्बैट भी तो होगा ही होगा सर। अगर आदमी गलती नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ छुपा रहा है ना सर? Now the thing is that when we suppress the truth because of some shame or because of some perceived shame or something like that, जब हम सच को छुपाते हैं तो हमने अपनी जिंदगी में एक सच का साइकिल झूठ का साइकिल शुरू हो जाता है। तो फिर जो भी हमारे साथ हो रहा होता है वो हमारे लिए नहीं होता हो। So we start something, that is one, and second thing is for future generations also who are especially in relation to combat. Any mistakes that we make in combat should be definitely be highlighted, at least within the combatants itself, within the forces only. बाहर बताने की जरूरत हो या ना हो, that is besides the point. But for future generations coming into combat, learning the lessons of where we went wrong earlier, what all should be avoided in the future, is how you save lives. आपके एक झूठ बोलने से किसी की जान जा सकती है ना सर? एंड उनके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, माँ बाप होते हैं। सो डेफिनेटली इन कॉम्बैट ट्रूथ हैज द हाईएस्ट प्लेस, है ना सर? बी इट द एनिमी और बी इट फॉर योरसेल्फ। एंड एज लीडर्स ना, हम तो जवानों के साथ हैं यार। ऊपर वाला बोल सकता है उसकी, ही इज नॉट फेसिंग देम, बट फॉर अस, क्योंकि हमने तो दिन रात हर ऑपरेशन में हमें पता होता है किसने कैसा काम किया है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। चलो विवेक, ये बताओ, बहुत लोगों ने पूछा है कि जब व्हेन यू फर्स्ट गॉट योर मरून बेरे एंड यू वोर द बलिदान बैच, वो फीलिंग क्या थी एंड हाउ डिड यू अर्न इट? उसके बारे में बात करो थोड़ा सा। तो क्या हुआ था सर कि 6 months प्रोबेशन खत्म हुआ और एक्चुअली वो लोग भी मुझे रगड़ के बोर हो गए थे, एंड मतलब I had become nothing new, 6 months when you see somebody, then एक वो हो ही जाता है सर, रैपो बन जाता है। एंड सो उस दिन सर सैनिक सम्मेलन था सर सीओ का, द डे आई वाज मरून।
तो मैं सैनिक सम्मेलन के लिए जा रहा था एंड मेरी इच्छा थी सर बलिदान बैज पहनने की बहुत ज्यादा, तो दैट इज व्हाट आई हैड कम फॉर, है ना सर। तो प्रोबेशन खत्म हो गया था, आई हैड बीन सिलेक्टेड है, मेरे को सीओ ने मरून बेरेट दे दिया था एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड बोला था कि यू नो आई हैड टू गो एंड अटेंड द सीओज सैनिक सम्मेलन। तो मैं जाके मैं जा रहा था सर, मेरे को सूबेदार मेजर साहब मिल गए और मैंने उनसे पूछा कि वैसे ये बलिदान भी पहन सकते हैं क्या? तो सर हाँ आप पहनो करके उसने मेरे को बोल दिया सर पहन लो करके। तो मैंने सर बड़े शौक से बलिदान बैज लगा के मैं सैनिक सम्मेलन के लिए चले गया सर। वहां पहुंचते ही सर द फर्स्ट ऑफिसर आई मेट वाज द सेकंड इन कमांड ऑफ द बटालियन, जिनका मैंने बताया था, जिन्होंने मेरे को यू नो व्हेन ही वाज लाइक ए एल्डर ब्रदर टू मी सर, मतलब लेटर ऑन इन कॉम्बैट एंड ऑल। तो उस टाइम तो बहुत खुर्राट थे वो, तो बोला यार तेरे को बलिदान किसने दे दिया? तो सर मैं तो बस चलता हुआ आ रहा था, सूबेदार मेजर ने बोल दिया। तो ही एट माय परेड सर ही टोल्ड मी कि ब्रदर ऐसा है कि till the time you don't have your first skill there is no balidan badge, है ना, you have to earn it, है ना। maroon beret ठीक है, you have done your probation and all of that, but this is earned in combat, first blood। तो क्या बोलते हैं, तो वहीं उतरवा लिया सर। तो anyway मेरा क्या हुआ सर, I went into combat, first operation, you know sir, first contact, first kill, first blood, तो that way। और मैं वेट करता रहा सर, वेट करता रहा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कोई बलिदान बैच दे ही नहीं रहा है, भूल गए सब लोग। तो फिर है ना सर कुछ 1.5-2 साल के बाद है ना सर, मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया था, मैंने खुद ही लगा लिया सर इसके बाद, कहाँ सीओ के पास टाइम ही नहीं है सर, सीओ कहाँ, मैं कहाँ, पता नहीं कौन कहाँ सर। सो लाइक दैट सर। So the feeling is out of this world sir, it is out of this world, that is actually for me पता नहीं you know I am that way a little simple minded if you want to say। मेरा ज्यादा कोई ambition नहीं था सर लाइफ में। My one ambition was to stand on my own feet so that I can you know complete the responsibilities towards my family, look after my mom, she was dependent on me financially, and क्या कहते हैं and look after my family, that was my responsibility in terms of my mother and my brother। तो but उसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए था सर, I didn't have any dreams। एक मेरे को बुलेट मोटरसाइकिल, उस टाइम पे मेरे को एसडी चाहिए होती थी बस सर, एक बाइक थी जो मेरा सपना था, और क्या कहते हैं, और बैंक में कुछ पैसे ताकि मैं अपने फैमिली का टेक केयर कर लूं, दैट इज ऑल। आई हैड नथिंग एल्स इन माय माइंड कि ये होगा या वो होगा, मैं किसी दिन घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, है ना, लोग मेरी यूनिफॉर्म देख के खुश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था सर, कभी भी नहीं था। एंड क्या कहते हैं, जस्ट ड्रीम वाज बलिदान सर। तो जिस दिन बलिदान बैच लग गया उस दिन मैंने मेरे एम्बिशंस खत्म हो गए, उसके बाद काम पे लग गए सर, बस दैट्स इट सर। और ये बताओ, why did you with such wonderful, मतलब पैरा में चले गए, पैरा एसएफ में चले गए, बलिदान बैच मिल गया, सक्सेसफुल ऑफिसर फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, रोल मॉडल। आप जैसे बहुत कम ऑफिसर मिलते हैं, you were actually a role model for many youngsters, जवान JCOs वो इतने फॉलो करते होंगे हम। Why did you suddenly decide to leave the army? रोल मॉडल का तो मुझे पता नहीं सर, मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने किया सर। एक्चुअली जो भी मैंने किया, मैंने कभी किसी को खुश करने के लिए ना दुखी करने के लिए किया, मेरा काम था। when I joined 9 para SF, even though my father was from 9 para commando, but since I had not spent much time with him since childhood only, and तो मेरे को कुछ पता नहीं था सर कि क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते हैं। 9 para was a very silent unit, तो बाहर किसी को पता नहीं होता था कि एक्चुअली पटन के अंदर चलता क्या है। So when we in fact all SF battalions were like that। तो when I joined 9 sir, तो those 6 months है ना सर, हमारे सुधीर वालिया सर, जसरोटिया सर, है ना सर, कई लोग के जो कॉम्बैट में खत्म हो गए थे, कई जवान जो कॉम्बैट में खत्म हो गए थे, जो शौर्य चक्र थे, कीर्ति चक्र थे, है ना सर, सेना मेडल्स थे, इनके कई मतलब बेसिकली मेडल्स असाइड सर, बट यूनिट में कहानियां होती हैं, असली कहानियां, है ना सर, असली कहानियां कैसे काम किया। Yes sir। तो there were many stories, and all the my seniors जो थे, they used to send me to the lines कि
पता करके आओ कि उन्होंने कॉम्बैट में क्या किया, पता करके आओ वो मरे कैसे, पता करके आओ कि उनको गोली कैसे लगी, पता करके आओ कि यहाँ गलती कैसे हुई। तो ऐसे करके मैं सर 6 months I heard so much from the men and I used to see the men, I used to see the officers and all। तो मेरे को पता तो था नहीं, मैं I was a blank slate सर, खाली घड़ा आया था मैं एक, है ना सर। तो पता था नहीं कि करते क्या है, बस बलिदान लगाना था, है ना सर। एंड ये था कि हाँ कुछ कॉम्बैट में जाते, पर जिसने लड़ाई देखी नहीं है उसको वो आइडिया नहीं लगा सकता कि कॉम्बैट होता क्या है ना सर। यू कैन सी इट इन मूवीज और यू कैन रीड इट इन बुक्स, बट ऑन ग्राउंड इट इज समथिंग एल्स ओनली ना सर, इट इज अ डिफरेंट हेवन। तो totally no movie can depict it, the real thing, yes। तो है ना सर, मूवीज में हाउस द जोश बोल देते हैं ना सर, कॉम्बैट में कौन बोलता है हाउस द जोश, है ना, चुपचाप निकलते हैं, हथियार कॉक करके निकलते हैं बाहर, है ना सर। हाँ बिल्कुल चुपचाप। तो क्या कहते हैं, सो वी 6 months सर they filled that, है ना, empty vessel that I had come sir, है ना सर। तो they filled it up with knowledge and experiences in combat, the mistakes that they had made in combat, the successes they had in combat, what they did right, what they did wrong, and what was their spirit like, what was their heart like। तो ये सारी चीजें, how did they lead, sir, what was the love they felt for each other, what is the, sir, कई हमारे बंदे सर, कई लोगों ने अपने कबर्ड में सर, हमारे जो ऑफिसर्स खत्म हो गए थे, भगवान के साथ साथ उनके फोटो लगा रखे थे सर। They used to pray to them। हाँ सर, सुधीर सर and Kevin and all people used to pray to them, है ना सर। तो इतना वो था सर, तो imagine how they must have led them। तो ये था सर। तो जब मैंने साइटेशंस पढ़े, है ना सर, रटवाया उन्होंने, and then I heard the story, so by the end of 6 months what I understood is कि अच्छा ये होता है स्पेशल फोर्सेस, है ना सर, train for combat, built for combat, है ना, lives a life of love and combat, that's it। तो कि that is what you have come here to become, so I became that sir। so क्या बोलते हैं, है ना सर, it was a very simple thing and just यही था और बन गए सर, है ना सर। सुनते और फिर वही सोचते हुए कॉम्बैट में घुसे और फिर वो घुस गया सर सिस्टम के अंदर। सो दैट इज, आई एम सॉरी सर, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन यू हैड आस्क्ड सर। कहीं और चले गए, मैं भी भूल गया अभी। चलो, मतलब यू हैव हैड अ टेरिफिक जर्नी। टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ आफ्टर दिस, योर दिस क्लॉ conquer land here and war, क्या मतलब वाटर इतना जबरदस्त है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, नाउ यू आर गोइंग टू सियाचिन ग्लेशियर पे जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करने जा रहे हो, जिसकी आप ऑलरेडी रेकी वगैरह कर चुके हो, जस्ट उसके बारे में बताओ थोड़ा सा सर। तो एक बार ना सर, किसी ऑपरेशन के दौरान मैं ऐसे पहाड़ चढ़ रहा था सर, पूरी रात हम पहाड़ चढ़ रहे थे सर, है ना सर, पिट्ठू लाद के ऐसे करके चढ़े जा रहे थे पूरी रात सर। बीच में ना सर कुछ बकरवाल थे, आग वाग लगा रखी थी, तो वहां से भी नहीं जा सकते थे, तो है ना सर रेवाइन में चले गए, बारिश हो रही थी, पता नहीं सर बहुत रवा हो दिन रात को। तो ले देके सर हमने रात को 9 बजे चढ़ना शुरू किया था और सुबह 6 o'clock एट फर्स्ट लाइट मैं रिज लाइन चढ़ ही रहा था। I was in the top of the mountain and I just reached the top and I just looked back sir। मेरे साथ, है ना सर, 6 बंदे थे। I just looked at those 6 guys and मैं सर सुबह इनको देखा मैंने, और मैंने ऐसे ही सोचा यार कि इन 6 बंदों के साथ अगर मैंने दूध की दुकान भी खोल ली ना सर, 1 साल में नॉर्थ इंडिया का सप्लाई ले लूंगा, है ना सर। I'll just lift it up, है ना सर। तो किरियाने की दुकान ही खोल दी ना सर, एक साल में हम सर नॉर्थ इंडिया का मार्केट ले लेंगे सर, है ना सर। बिकॉज these kind of people they are legend, they are gods walking on this planet earth, they are pure, है ना सर, they are highly pure people, very very honest, may not be with other people, with themselves they are very honest, है ना सर। तो बिल्कुल, है ना सर, and very well trained and, है ना, this that and all that, and willing to put their life for what they believe in, है ना सर। तो हाँ, so these kind of people, if they come together and work in one focused direction, they can achieve anything। So that is something that came into my mind very early in combat only, कि मेरे को समझ में आ गया था कि ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल सर, वन नाइट आई वाज, मैं सर एक ऑपरेशन में निकला हुआ था, मैं यंग था, मतलब यंगस्टर था उस टाइम पे, लेफ्टिनेंट कुछ था, एंड वी वर डीप सर, 3-4 दिन हम पता लगा था हमें वहां पहुंचने के लिए।
और बहुत ठंड थी सर, है ना सर, नवंबर दिसंबर का महीना था एंड 2004-5 की बात होगी सर, एंड बिल्कुल ही नाले में हवा चल रही सर, आइसिकल जम रहे हैं सर, है ना सर, और बड़ी ठंड लग रही है। और मेरे सामने आई वाज सिटिंग इन अ स्क्वाड सर, है ना, सो स्क्वाड का एक स्क्वाड कमांडर था, हवलदार थे, एंड वो बैठे हुए थे एंड क्या बोलते हैं, मैंने पहली रात उनको सर वो योगा पोजीशन होता है ना, पैर फोल्ड करके बैठ जाते हैं योगी टाइप, और एके उसने अपने लैप पे रखा हुआ एंड पतली सी उसने सर वो कॉम्बैट टी शर्ट पहन रखी थी और उसने पाउचेस पहन रखे थे एंड कोई पिट्ठू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हथियार एंड टी शर्ट एंड उसका वो ट्राउजर सर, एंड इतनी भयंकर ठंड में सर वो बैठा हुआ एंड अंधेरी रात थी, तो ही वाज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग इन वन डायरेक्शन ओनली। मेरे को बीच में नींद आ जा रही थी और मैं जब भी मैं आंख खोलूं मैं उसको चेक करता, तो ही वाज लुकिंग इन दैट डायरेक्शन ओनली, अनमूविंग। I saw him do that first night, I saw him do that the second night, I saw him do that the third night मुझसे रुका नहीं गया सर, मैंने थोड़ा सा उसके पास गया, मैंने उस्ताद आपका पिट्ठू कहाँ है, तो he said वो देख रहा था उस तरफ, unblinking, constantly looking at that direction sir whole night for 3 nights। तो मैंने उसको पूछा उस्ताद ये आपका पिट्ठू कहाँ है, तो बोलता है साहब मुझे ठंड लगती नहीं, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, तो मुझे पिट्ठू की जरूरत नहीं। That is what he replied to me sir। तो मैं बोला ओके करके मैं जाके बैठ गया सर चुपचाप वापस। ये अलग ही लेवल के सोल्जर्स हैं, एब्सोल्युटली। Yes sir, so that is the kind of sir जिस मिट्टी के बने हैं sir, and तो क्या बोलते हैं anyway, तो the training also makes them like that, and then the harshness of death, and sir the harshness of combat makes it very very real, either you are real or you will die, है ना sir, it is like that, to keep it real only sir। So anyway from there sir I got this thing कि यार people like this, if they can come together and go in one direction, that direction can be achieved, we will carve it out। तो जब मेरा सर ये कॉम्बैट फ्री फॉल में एक्सीडेंट हुआ, I had a little spinal injury, this that, and I had finished my combat years and 14 years of service, yeah, you finished, absolutely, that life is over। So and for me my heart was satisfied, I had nothing to look back to or look forward to, है ना सर। Life is for me is a story, and you know you write your story, so I wanted to experience something else and write some other story, क्योंकि ये story तो खत्म हो गई, है ना सर। तो I did not know what I have to do in life, मेरे को कुछ पता नहीं था, money was not really, मेरे को पैसा कभी ना समझ में आया, ना ज्यादा उसका कभी प्रेशर पड़ा मेरे ऊपर सर, in the sense so what do I want to do was my question, and I didn't know what I want to do, and 6 महीने में बहुत तड़पा भी था सर, मैं कुर्सी में बैठ के मेरे हाथ पैर हिलने शुरू हो गए थे, मैं करूं क्या, because till that time I'm always a person who has known what he wants, and that was the first time in my life where I didn't know what I want। तो मैंने बैठ के सर पेंसिल पेपर से लिखा, अच्छा मुझे क्या क्या आता है, मुझे स्काई डाइविंग आती है, मुझे अंडर वाटर डाइविंग आती है, मैं पहाड़ चढ़ना जानता हूँ, मेरे को these are the things I know, and what are the things that I want to learn how to fly a plane, another I want to visit these places, I want to experience these things, so I wrote all these things down and फिर छोड़ दिया। And then I met this officer sir, जैसे मैंने आपको बताया था वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे, and he had been paralyzed in hospital for more than 4 years, and one day on wheelchair he came to me, he said sir कि मेरा जैसा बंदा स्कूबा डाइविंग कर सकता है क्या, तो सर मैं चेक करके बताता हूँ। मैं चेक किया सर, मेरे को एक वीडियो मिला, मैंने देखा इट इज पॉसिबल, तो आई टोल्ड हिम इट्स पॉसिबल। तो ही सेड सर कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे होगा। तो होता है ना सर, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन होता है एक सर, है ना सर, व्हेन यू फील अदर ह्यूमन बीइंग। सो आई जस्ट and I had this feeling ki we can do anything if you really feel like doing something for someone, that means you can do it, है ना सर। तो you just have to take the step। तो मैंने उसको प्रॉमिस, तो आई जस्ट प्रॉमिस्ड हिम कि यार आई प्रॉमिस यू यार वन डे आई विल टेक यू करके बोल दिया सर। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग एंड ऑल दैट। मेरे को पूरी ये है ना दिस जर्नी अबाउट पीपल विद डिसेबिलिटीज, आई केम टू नो हाउ व्हाट आर द नंबर्स, व्हाट इज देयर लाइफ एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड क्या कहते हैं, बस सर मैं
बाहर आ गया और मैं घर पे था और कुछ कारपेंट्री कर रहा था सर। एंड मेरे साथ ऑपरेशंस में थे सर, मेरे टीम के बंदे, उनका वो आने लग गए सर बाहर, एक एक करके वो आने लग गए। एंड फिर हम इकट्ठे होने लग गए सर। उन्होंने सीधे बोला साहब कि जो आप बोलोगे साहब हम करते हैं। वही करेंगे यार मुझे तो नहीं आप जो भी करोगे हो जाएगा, हम साथ में हैं। तो वी सेड कि ठीक है, मैं सेड यार ये है ना, जो भी करेंगे दुनिया में, पर ये कि ये पहले वादा पूरा करते हैं और फिर देखेंगे क्या करना है। सो वादा पूरा करने के चक्कर में सर एक्चुअली दिस अनफोल्डेड। वी गॉट सम इक्विपमेंट, एवरीथिंग सर, देन यूनिवर्स स्टार्टेड थ्रोइंग एट अस सब कुछ सर। अपने आप कॉल आते, अपने आप लोगों ने इक्विपमेंट दे दिया, अपने आप ही बहुत कुछ हुआ। हमने भी, इट इज नॉट बीन एन इजी जर्नी एट ऑल एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी एवर, है ना सर। इट इज नेवर गोइंग टू बी इजी, है ना सर। It's never going to be easy. It's in the mind, but it is about how you feel about your life. And sir, I want to feel good about my life. And when I can do something that is of value to other people, है ना sir, and to me also, है ना sir. It's a great moment spent in time, है ना sir. और क्या चाहिए। तो क्या कहते हैं, हम लोग ने सर चंडीगढ़ से शुरू किया, दिल्ली, बॉम्बे, ऐसे करते करते हम लक्षद्वीप गए। एंड आई मेट सो मेनी पीपल विद डिसेबिलिटीज, मोर देन 120 पीपल, पैरालाइज्ड पीपल आई मेट। एंड उनको हमने स्कूबा डाइविंग वगैरह कराया सर। करते करते हम चलते गए सर। बंदों ने अपना पैसा लगाया, मैंने अपना पैसा लगाया, हम जो भी था हमारे पास, छोटा मोटा जो भी था सर। When I left the army, I had 98,000 rupees. That is all, है ना सर। तो क्या बोलते हैं सर। सो ऐसे करते करते हम बस पहुंच गए सर, लक्षद्वीप पहुंच गए। कई रास्ते में लोगों ने मदद किया, है ना सर, साथ में चले। पीपल somehow sir, I was very surprised. People feel very, today's world ना, there is so much of negative news going on, है ना सर, कि ये हो रहा है वो हो रहा है। So people actually feel that the world is a very bad place. But actually sir, when you get outside in the world, है ना sir, you get out of your cocoon and you meet people, you will realize that everybody has a heart. Everybody wants to, see something better. Everybody has strength in them. तो just मिलने वाली बात है सर, है ना सर। And if you go out with that, बात कही विवेक आपने। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से हट जाए ना, और अपने टीवी चैनलों से हट जाए, बाहर निकल जाए ना, साइकिल पे भी आप रियल इंडिया देखोगे। इतना लोगों के दिल में, मैं तो कश्मीर में भी रहा हूँ, पंजाब में भी, आई हैव सीन इंसर्जेंसी। एक्चुअली लोग बहुत अच्छे हैं, बट हमने ना ऐसी धारणा बना लेते हैं, हम ऐसे मन में पढ़ के या भेज के लोग ना, देर आर, पता नहीं क्यों, जो जहर टेलीविजन सेटों में और टेलीफोन्स में है ना, आपके मोबाइल फोन में, वो बाहर नहीं है। बाहर लोग एक्चुअली में, जब क्रॉस कंट्री गए या कहीं, मैंने देखा है कई बार तो, इवन रिसेंटली आई हैव ट्रैवल्ड इन मेनी प्लेसेस, बिना ये बताए कि हम आर्मी में है, इस रैंक पे है, स्टिल पीपल गिव यू लॉट ऑफ रिगार्ड। पूछते भी नहीं है कि आप, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली लोग अच्छे हैं। कई बार गरीब से गरीब आदमी के पास सबसे बड़ा दिल होगा सर, है ना सर, है ना, उसके पास नहीं होगा, वो आपको दे देगा। बहुत देखा सर ऐसा। एंड सो यू रियलाइज कि एक्चुअली व्हाट वी सी ऑन आवर मीडिया एंड एक्चुअली व्हाट इज देयर ऑन द ग्राउंड में कई बार फर्क होता है सर, है ना सर, कई बार फर्क होता है। पीपल as bad as it seems, and the world is not as bad as it seems, provided it depends on what you are doing, है ना sir. If you are walking around with a light, you will shine, and you will shine on the world around you, and the world will seem bright, sir. तो वाली बात है। So there are days, मतलब ऐसा नहीं है sir, it all sounds very positive and all, but there are days and often when I feel very disheartened, I feel anxiety, है ना sir, I feel just like everybody else, है ना सर। हो गए पैरा कमांडो वगैरह, सबको डर लगता है, सबको फाइनली, वही दिल धड़कता है, वही मुसीबतें हैं, वही सोच है। हाँ, थोड़ा सा स्टील ज्यादा है, बिकॉज मैन ऑफ स्टील, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड माइंडसेट, है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। बट आई एग्री विद यू, सेकेंड इनिंग्स इज लाइक योर सेकेंड इनिंग्स इज फैंटास्टिक। मैं भी पिछले 2-2.5 महीने से, माय सेकेंड इनिंग्स आल्सो हैज बीन सिंपली अमेजिंग। ऐसे ही इट्स पहली जर्नी आसान थी भाई, NDIA में चले गए, अब कमीशन हो गए, अब जो ना
एक रूटीन है फौज का, प्रमोशन का, रैंक का, कोर्स का, ये वो, बट नाउ इट इज डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. So it's not easy and it's not difficult. And sir, what it is what do you feel? And sir, what do you feel like doing? And the more you do things that you feel like doing, the brighter the world will seem. The more the pathways you will see, the more the it will unfold. तो वो ये is that balance है ना सर, somewhere कि क्या बोलते हैं है ना सर, जैसे वो ना कर्म वो करो जो करना ही फल लगता है. तो वही वो एक ही साइकिल में खत्म हो जाता है ना सर. आपको you have no expectation from anyone else because you are doing what you like doing, है ना सर. तो and if you like doing something, automatically your brain will be focused on it, है ना सर. And if your brain is focused on something, your brain is a quantum computer, है ना सर. It will execute and it will bring out results. तो वो है सर. But in this, people should understand that, or people should understand like what I try to understand and tell myself, है ना सर. self counseling करता रहता हूँ बैठ के. So like there are days that I feel disappointed, there are days constantly it's like a false crest. You feel कि हाँ पहुंच गया, अब तो हो गया करके, but then you realize कि नहीं, फिर एक और, then someday you feel कि यार you can stop looking at where you want to go, start seeing where you are and what have you achieved so far, है ना sir. And trust in that and trust in your life, and life is a magical experience. पता नहीं किसने बनाया, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे. It's magic, है ना sir. This moment is magic. So it is actually magic. It's the real magic. So it's just how you control it. So just, है ना sir, the biggest thing is कि find some things that you love doing, है ना sir. They may not give you $1 million, but what do you do with $1 million? You try to buy happiness, right? So you do what gives you happiness straight up, and let the $1 million or $1,000 or whatever comes, and whatever comes go. But your moment is yours. You do what you want to do with it. So वो है sir. So my whole thing is people should not don't try to avoid being sad, or don't try to avoid being anxious, or don't try to avoid these so-called negative things. That's part of being human, है ना sir. So क्या बोलते हैं, God थोड़ी ना experience कर सकते हैं दुख और सुख, है ना sir. तो हम ही कर सकते हैं, है ना sir. So that is our privilege to feel sorrow, to feel joy, to feel hunger, anxiety, terror, and bliss, है ना sir. This is our joy. It is within the human experience. So है ना, it is beyond the gods, है ना sir. तो ये है sir. गॉड तो हम जानते हैं, है ना, मतलब और नहीं जानते, जानने की कोशिश भी नहीं की. हम तो ह्यूमन रिलेशंस में रहे कि कैसे लोगों को दिल के नजदीक लगाया जाए, कैसे लोगों को इतना प्यार दिया जाए कि वो कहे कि हाँ कोई बात है ना, दिल से लगाव लगाना, और वो रेसिप्रोकेट करते हैं. और मैं तो ऐसी जगह देखा है, हाइट ऑफ पंजाब इंसर्जेंसी, मतलब I've seen the country at its seams apart, I've seen riots in UP. अब ऐसे riots मैंने जलते हुए ह्यूमन फ्लैश की स्मेल ना बहुत कम लोग, हमने एक आधी लाश देखी होगी अपने रिलेटिव की क्रिमेशन ग्राउंड में. मैंने ऐसा सीन देखा, मंजर देखा है जिंदगी में, जब सैकड़ों लोग जल रहे हैं. एंड वो स्मेल ना मेरे आज तक मैं उसको भूल नहीं पाया हूँ. व्हाट आई सॉ इन मेरठ हिंदू मुस्लिम रॉयट्स ऑफ 1987. देन आई सॉ पंजाब इंसर्जेंसी, व्हाट रिलीजन डज टू अ कम्युनिटी. फिर कश्मीर में 2-3 टेन्योर किए हैं जहाँ. लेकिन मैंने देखा कि यार आप अच्छे नेक इंसान बनो, और जो खासतौर पे वर्दी पे हम इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हम लोग काम कर रहे हैं, हमें तो बहुत ज्यादा संभल के काम करने की जरूरत. हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते अननेसेसरली. ठीक है, गोली चलाना हमारा काम है, और हम तो कहते थे देखो यार तुम बिना पासपोर्ट और वीजा के आए हो इंडिया में AK-47 लेके, भाई ये तो नहीं चलेगा. सो मेरा टास्क है टू एंश्योर एलिमिनेशन ऑफ यू. बट उसमें जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हर्ट ना हो. ये इस चीज का बहुत मेरे दिल के बहुत करीब था कि लोगों को प्यार देना, और फिर वो रेसिप्रोकेट करते हैं बहुत जबरदस्त. इट कम्स बैक टू यू, उनकी दुआएं, उनकी, फिर आपको कहीं व्रत रखने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग यू. Absolutely. है ना. खासतौर पे
हम लोगों को जो वो स्टेशनरी ना, जो आरआर वगैरह में हमने वही उसी पोस्ट पे रहना है, और हाँ जी, हाँ हमारा जी। काम भी है ना। आपका तो है Absolutely. यू आर अ डिफरेंट फोर्स ऐसे। नोमैड है सर, हम तो नोमैड नोमैड्स की तरह। लेकिन हम नोमैड होते हुए भी हम कहीं ना कहीं स्टेशनरी, हमने कहीं ना कहीं जवाबदेही देनी है, यू नो। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी वहाँ के बच्चे मेरे साथ बहुत अटैच्ड हैं, और मतलब जाता रहता हूँ मैं। अभी जाना है दोबारा, अभी सिविलियन होके जाएंगे वहाँ, फिर से देखते हैं क्या काम कर सकते हैं। तो दैट वाज सॉरी, भी हम एक अलग ट्रैक में चले गए। नाउ टेल अस अबाउट दिस एक्सपीडिशन यू आर डूइंग टू द स्टैचिन ग्लेशियर, जो कि लोग सुनना चाहते हैं। वी नीड टू, वी आर ऑल आर गुड विशेस आर विद यू इन दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसके बारे में बताओ Sir, this it is basically part of a 3 world record series, a triple world record series का part है ये land world record. It is the first of the world record series which is coming up in line. Basically, we are training a team of people with disabilities across race, culture, class, religion, and economic status. तो ऐसे करके we are training them to be able to conquer land, conquer air, conquer water independently. So what that means is we are training them to climb a mountain independently. We are training them to scuba dive independently in the open sea, and we are training them to skydive independently. So that is the thing. The whole idea behind this is that that if people with disabilities who are as human as anyone else and as capable as anyone else, if they can, if they can jump out of an aircraft on their own and skydive independently, if they can scuba dive in the ocean independently, and if they can climb a mountain independently, then they can definitely sit in an office and do your job independently. Very good. So it is about employment. The biggest issue that I saw in my journey, in my opinion, when I was traveling through India and I met so many people with disabilities, and I realized that people don't understand their potential. People don't understand their potential because people think यार हाथ नहीं है तो नहीं काम कर सकता, है ना, दुखी होगा, ये होगा, वो होगा. People put their own insecurities, their own feelings about themselves on other people, है ना सर. तो उस वजह से, and there are other issues also, तो उस वजह से they don't get employment. So employment rate is extremely मतलब drastically very tragically low for people with disabilities, and not only in India, across the world, sir. So we felt that it is the first thing is a perception of society in general, that सोचते कि यार कुछ नहीं कर सकते. So ऐसे करके ना, they will show, we will show that not only sitting in an office, what 99% of the world has not done, they can do, sir. So if they can do this, if they conquer the elements, then ये तो है ही है ना sir. It will also showcase the spirit which comes, है ना sir, the spirit which comes out of hardship. So लोग पूछते हैं यार SF ऐसे क्यों है, या फौजी ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि यार जिंदगी बड़ी कठोर देख रखी होती है ना सर. So we've seen a very hard life, है ना. 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन, है ना सर, एक पूरी खा के निकाला हुआ है ना सर, उस पे पहाड़ चढ़ रहे हो, है ना सर. तो है ना सर, तो जब इस टाइप की आप कठिन परिश्रम देखते हो, आप कठिन जिंदगी देखते हो, तो है ना, आपका दिल और दिमाग खुलता है, आपकी है ना नॉनसेंस चले जाता है और सेंस छूट जाता है सर. सो जब ये बच जाता है, विद दिस सेंस द वर्ल्ड इज मच क्लियरर, मच सिंपलर, है ना सर, मच बेटर. So you are able to be much more efficient also. You have lost your insecurities, you have lost your fears, you have lost your shame, embarrassment, all these things you lose, है ना sir, and you are able to focus on what needs to be done, है ना sir. So for people with disabilities, it becomes like that. When a person is on a wheelchair, let's say, and मतलब आप खुद ही सोच लो सर, एक आम आदमी के लिए एक शहर में, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इतनी मुश्किल हो जाती है, तो एक बंदा जो व्हील चेयर पे होगा वो कैसे जाएगा सर, है ना सर. I have seen people, sir, मेरे सामने I have seen a criminal lawyer who was on a wheelchair, sir, waist down, paralyzed. He was a criminal lawyer, and एक कैब आया सर, he called a cab to go somewhere, मैं उसको छोड़ रहा था, and कैब वाले ने मना कर दिया. क्यों? क्योंकि वो व्हीलचेयर फोल्ड करके उसके कैब में रखेंगे तो सीट फट सकती है. So these kind of obstacles, है ना सर, they are facing constantly, मतलब घर के अंदर और घर के बाहर, है ना सर. In spite of,
So for them, na sir, every time, मतलब going to sleep to waking up 24 hours is it's an obstacle course. तो उसको करते 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 प्योर हो जाते हैं. जब वो प्योर हो जाता है इंसान, तो उस इंसान की प्योर एनर्जी अगर कहीं भी लगा दी जाए, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे ग्राउंड पे हो, चाहे एजुकेशन में हो या जहां भी हो, अगर वो प्योर एनर्जी हमने कैप्चर करके डायरेक्ट कर दी, तो मतलब सर नया ही कुछ अच्छा बनेगा. So that needs to be understood by society in general. So that is our aim. That is why we are doing the 3 world records, and the land world record is the first one. We are going to Siachen Glacier, sir. That is what has been planned, and has the armed forces have given us the sanction for going to the glacier. We are in the process of training right now, sir. अभी training चल रही है पूरी team की, and क्या कहते हैं, we are in the process of trying to generate the necessary resources required to be able to do this, because जो भी हो सर, क्या कहते हैं, everything requires effort, time and money, है ना सर. तो कर रहे हैं सर, हो जाएगा सर. This is going to be very exciting since I've been there so many times. So I'm looking forward to this. A lot of people are asking me कि सर disability नहीं है, but can we be part of this expedition to Siachen Glacier? Sir, क्या कहते हैं, firstly, if you have wished this, so somewhere in the universe you have sent out, है ना, अपनी तरंगे भेज दी है, तो हमारे पास आ जाएंगे, है ना सर. And this is how we have reached so far. We didn't have anything, sir. हमारे पास कुछ नहीं था, और हमने ना 3-3.5 साल जैसे हम चले हैं साथ में, तो someone's good wishes, some energy has been walking with us, है ना सर. ऐसे है कि जैसे भगवान हमारे साथ साथ चल रहा है, और कभी आगे, कभी पीछे, कभी साथ में, है ना सर. तो ऐसे ही है सर. तो अभी भरोसा करके यहाँ पहुंचे हैं, है ना सर. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, पर है ना सर, मरेंगे थोड़ी ना, है ना सर. तो होगा, जरूर होगा, बिकॉज जहाँ के पीछे विवेक जैकब और मेजर अरुण और 10-12 बारकोड और एसएफ के बंदे लगे हुए, वाली जरूरत है किसी की काम ना हो. ये तो हम सोच ही नहीं रहे कि हम तो we are looking now, we'll be following you very closely and on your Siachen expedition, and since I've been in Ladakh many times, so my heart lies there. किसी जन्म में मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में किसी ना किसी लद्दाखी फैमिली में का बच्चा रहूंगा. My heart lies in those monasteries and monks. तो हमारा सेंटर भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है सेव द हिमालयाज, वहाँ पे सेव द हिमालयाज फाउंडेशन, उसकी भी हम अभी इंटर्नशिप वगैरह शुरू करेंगे, बच्चों को भेजेंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द माउंटेन्स, है ना. तो दैट इज माय एनजीओ दैट आई एम हेडिंग. प्लस जैसे आपकी जर्नी आपको डिसेबल की तरफ लेके जा रही है विवेक, आप अरुण और सब काम कर रहे हो, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो. मेरी जर्नी पता नहीं क्यों मुझे नौजवानों की तरफ लेके जा रही है, कि मैं कैसे देश के नौजवानों को इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं, इनको सही दिशा दिखाऊं, कैसे इनको मैं बताऊं हिंदुस्तान क्या है, और कैसे ये जो हमारी सोसाइटी में किसी की ड्रेस को देख के, किसी की भाषा को देख के, किसी के रिलीजन को देख के जो भेदभाव की एक वो है, वो कैसे इन फोर्सेस को हम फाइट करें. और एक जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हम उस दिन भी आप मेरे ऑफिस में थे, हम बात कर रहे थे. तो मेरा ये मिशन हो गया अभी. और मेरा यूट्यूब चैनल मैंने ऐसे ही 2 महीने पहले लॉन्च किया, पूरा का पूरा लीडरशिप और मोटिवेशन पे, कोई वाहियात बात नहीं. तो आप विकलांगों को और दिव्यांगों को जोश दे रहे हैं. मैं नौजवानों में एक साहस और जोश भरने का काम कर रहा हूँ, कि कैसे हम इनको बताएं कि सही रास्ता क्या है, देश को आगे कैसे लेके जाना है. इस पीढ़ी में जब हम नहीं रहेंगे, तो कम से कम कुछ तो हम पद चिन्ह ऐसे छोड़ के जाएं कि लोग कहें हाँ यार, नहीं यही तरीका है जिंदगी जीने का, और ये जो ना फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए. एवरी इंडियन इज एन इंडियन एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट हु लिव्स इन इंडिया, कोई भी हो, है ना. तो it's my second innings for your first innings, all the young people of India. And Vivek, you are an inspiring person. I'm so मुझे ऐसे लगता है, wish we had served together somewhere, वो मौका नहीं मिला हमें. But now our paths we have met, and now in this journey I love to be part of your organization, whatever I can do, and I'll keep calling you on this thing to inspire young people.
Sir, will be my pleasure, sir. It'll be my pleasure. मैं वही सोचता हूँ सर कि क्या बोलते हैं, जो मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ है कि एक्चुअली हम लोग कहा थोड़ा सा ना सर गलती कर जाते हैं, और गलती कर जाते हैं अपने आप के लिए, दूसरों के लिए नहीं, कि हम बाहर बहुत देखते हैं सर, है ना सर, हम बाहर अपने घर से बाहर देखते हैं हम, है ना, दूसरे शहर में देखते हैं, दूसरे रिलीजन को देखते हैं, दूसरे कौम को देखते हैं, है ना सर, दूसरे प्रोफेशन को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, और उसमें जजमेंट में फंस जाते हैं, और उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं. एक्चुअली if human beings know, if they just look at themselves, look how they are living their life, है ना सर, and gain wisdom, है ना सर. आपको 10,000 लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है पूछने के लिए कुछ ये वो, है ना सर. अपने there are so many great people, विवेकानंदा, है ना सर, so many great people who have written the pure knowledge, pure wisdom they have written. आप उसको पढ़िए और अपने दिल के अंदर देखिए, अपनी जिंदगी को देखिए, अपने आप को देखिए, और है ना आजादी आप ही की होगी, है ना सर. तो ये है ये देश ना, मैं कहता हूँ ये संतों का देश है. आप साउथ से स्टार्ट करो, केरला से, और लद्दाख तक जाओ, आपको कितने गुरु नानक, कितने विवेकानंद, कितने रामकृष्ण परमहंस, कितने बुल्ले शाह, है ना, कितने संत फकीर इस धरती पे पैदा हुए हैं, है ना. कबीर को देख लो आप मीराबाई को देख लो आप, मतलब हमारे भरे पड़े आप. और हर एक किसी ने भी ना तोड़ने की बात नहीं करी है. कोई एक बता दो मुझे जिसने कि ना किसी की भाषा पे, किसी के रंग रूप पे, किसी की वेशभूषा पे, या कोई क्या खा रहा है उसके ऊपर किसी ने टिप्पणी करी है. सबने दिल जोड़ने की बात की, अच्छा इंसान बनने की बात की. तो ये यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है. मैं कहता हूँ सच ए ह्यूज पॉपुलेशन बेस, एंड विद कोरोना एंड इकोनॉमी का जो हाल हमें पता है, अगर ये अच्छी सोच लेके नहीं आगे चलेंगे तो वी कुड बी इन ट्रबल एज ए नेशन. वी नीड टू. इंसान को ये समझ में आ जाए ना सर कि उसकी जिंदगी जो उसको दिख रहा है, उसकी जिंदगी जो भी जिनसे वो मिल रहा है, जो भी वो देख रहा है, वो एक शीशा है. वो अपने आप को एक शीशा में देख रहा है ना सर. कि किसी से मिल रहा है, अगर वो बैठ के आप जजमेंट करोगे कि यार ये बेवकूफ है, या ये है ना, ये हिंदू है, या वो मुस्लिम है, या वो बुद्धिस्ट है ना, ये कम है, वो ज्यादा है, ये है, वो है, तो क्या है, उसका दिमाग लग गया है बाहर, है ना सर. अब वो उसी जजमेंट में बाहर घूमता रहेगा और दुख पाएगा सर, है ना सर. तो वो चक्रव्यूह में फंस गया सर, है ना सर. द मोमेंट ही रियलाइजेस. विवेक, इन लोगों को ना मैं बीमार कहता हूँ. इनके ना माइंड में एक वायरस है, कैंसर की तरह इनके दिमाग को खाए जा रहा है. ये बीमार है लोग जो इस टाइप से सोचते हैं और देखते हैं, एंड हमने इनको ठीक करना है. नहीं सर, मैं तो बस मेरे को किसी को डर है सर. सब अपनी अपनी जिंदगी है ना सर. माय ओनली थिंग इज कि ये है ना सर, कि दिस समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर. So many people who are watching, so just stop looking at the world outside. Stop looking at judging everything and everyone that you meet, because what you are doing is you're judging yourself constantly. Yeah. And when you judge yourself for enough, it becomes a habitual pattern of thinking, है ना सर. वो आपकी सोच बन जाती है. आप वैसे ही सोचोगे, कोई भी मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको, है ना, अच्छा बुरा, लेफ्ट राइट, ब्लैक व्हाइट, है ना, उस किसी चीज में डालने की कोशिश करोगे, और इंसान को किसी चीज में फिट कर ही नहीं सकते, है ना सर. तो यू विल कीप स्ट्रगलिंग, एंड बेसिकली इट इज योर own weakness, own insecurities, own judgment of your own self which you are throwing out on the world outside. So the day you stop doing that, automatically आप वही चीज, वही घर, वही लोग, वही सिचुएशन, वही सर्कमस्टांसेस, वही नौकरी आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, है ना सर. इट इज फॉर योर ओन हैप्पीनेस, आपकी खुद की खुशी के लिए, है ना. बाहर की दुनिया को, है ना, जज करना छोड़ दो, बस एक्सपीरियंस करो, है ना सर. तो इट विल जस्ट गिव पीस ऑफ माइंड, है ना सर. जस्ट गिव पीस ऑफ माइंड. एंड कोई भी बड़ा काम, छोटा काम कुछ नहीं होता है. एंड स्पेशल फोर्सेस जो है ना, लोग बोलते हैं स्पेशल फोर्सेस के लिए, है ना, मारना है, ठोकना है, ये करना है ना, हथियार चलाना है, ये वो. तो ये सब पिक्चरों वाली बातें होती है ना. क्या बोलते हैं, बड़े बड़े संत मिलेंगे आपको स्पेशल फोर्सेस के अंदर, है ना सर. बहुत मिलेंगे ना. तो जस्ट सिंपल थिंग, इट्स अ माइंडसेट. तो आप कहीं भी लगाइए, जो भी काम करते हैं आप एक स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट से करिए, है ना. दैट इज द जॉय. एग्जैक्टली.
बीइंग अ स्पेशल बस- फोर्सेस और बीइंग अ फौजी, इसीलिए मैं कहता हूँ जो यंग एस्पिरेंट्स देख रहे हैं कि पहले वो एटीट्यूड बनाओ एक फौजी का, है ना, वो एटीट्यूड बनाओ, एक वो एबिलिटीज डेवलप करो अपने आप के अंदर, अपनी सोच बदलो, अपने आप फिर ये एसएसबी वगैरह कुछ नहीं नजर आएगा, ऐसे ही जाओगे आप मस्ती में और रिकमेंड होके आ जाओगे अगर सोच बदल दोगे तो, है ना। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सबको कहता हूँ वेदर ए यंग बॉय और गर्ल, घर में बोलो थैंक यू वेरी मच, 10 दिन के लिए सोलो ट्रिप करो इंडिया, आपकी सारी एसआरटी क्लियर है, जस्ट गो, आई हैव बीन सेइंग गो टू लद्दाख, गो टू नॉर्थ ईस्ट, या पंजाब से उठो और सीधा केरला पहुंच जाओ, लक्षद्वीप और उधर अपना धनुषकोडी चले जाओ जहां के अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम थे वहां पे, जस्ट गो एंड ट्रैवल विदाउट एजेंडा, 10-15 दिन सोलो ट्रैवल करो टू नो योर कंट्री, हिमाचल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, और 10 दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। I saw on Instagram there's this person from Kerala, sir, young boy, Kerala ना तमिलनाडु के हैं, 20-21 years old guy, sir, सैंडल पहन रखे हैं, sir, he has walked from Kerala Yes. to Kashmir, है ना सर? Yes, yes. हाँ, तो दुनिया देखने के लिए तो है ना दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, पुश चाहिए, है ना सर, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चाहिए, बाकी यूनिवर्स विल गिव यू, है ना सर? तो बिल्कुल तो क्या कहते हैं, ये है तो है ना सर। विवेक, इट्स बीन मतलब ये सेशन में मतलब मन नहीं कर रहा है खत्म करने का, एंड आपके साथ मैं तो आई एम योर फैन, ठीक है, आई टोल्ड यू दैट दे आल्सो वी मेट, ठीक है, लव टू सी यू आर अ रोल मॉडल, जिस तरीके से आप इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो, बिकॉज देखो हमारे ब्लड में तो आर्मी है, वो निकल नहीं सकती है, यू नो वी हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स, इतना रगड़ा खाया, इतने यार दोस्त हमारे हैं, एंड वी होल्ड आवर नेशन वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, है ना, एंड व्हाट यू आर डूइंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्सपेडिशन, आई विल बी वाचिंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड वी विल रिमेन इन टच, है ना, और जो भी हम कर सकते हैं वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट दिस मिशन ऑफ योर्स, and may you achieve more and more success, and more people follow you and get inspired from a real life a great person like Major Vivek Jacob, Special Forces. नहीं sir, nothing great about me, sir, just average, just like everyone else, sir, that's all, sir, just doing what I like doing, sir, nothing else, just that's all, sir. Thank you so much, sir, and wonderful, I have met a lot of people in my life and very blessed. मतलब मैं आपकी मुंह पे प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, but what you are doing, sir, what for the youth of this country, what you are how you are leading them, teaching them, grooming them, है ना sir, जिस तरीके से आप सीख रहे हो sir, बहुत लोगों को इससे lot of children's lives will be made, sir, है ना sir, and that is you will plant a lot of fruitful trees, है ना sir, so all the very best from myself and from Team Claw, sir, है ना sir, wish you all the very best, and anything anytime, sir, anything anytime. Yes, sir. Thank you Vivek, we'll remain in touch, and Jai Hind. Yes. Jai sir, Jai sir, Jai Hind, all the very best, thank you. Thank you.